I am Waqas Nasir and I welcome you to Jali Talk Show. He's the person who has photographed many faces of our entertainment industry. He likes to play with the light and has experienced almost all the genres of photography. He works with all his heart and put a lot of effort into it. But how hard was his journey? Who stood by him through all of his struggles? This interview reveals all of these details. And a fun fact that Mohsin Khabar is not good with rapid fire. Assalamu alaikum Mohsin, how are you? Walaikum Assalam, I'm fine, how are you? I am good. Firstly, thank you for offering this place. The studio is really good. Thank you. So Mohsin, firstly, I would like to know that how does it feel to be in an industry where there are lots of photographers and mashallah say you have made a name for yourself and you're doing really good. Like I've seen your commercial photo shoots, I've seen your fashion photo shoots, I have seen your traveling photography. So how does it feel like you're doing a lot of things and you come from a background of architect? Yeah. So I'm a professional architect, but I eventually thought कि photography और architecture दोनों साथ साथ चल सकते हैं, because दोनों ही art की medium है और architecture एक ऐसा medium है which actually it has all types of art in it, architecture के अंदर. और हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स भी हमें बताते थे slightly bragging के architects are father of all arts. It is, like I heard that. So that's actually a fact now that I'm listening from. Yeah. And a lot of famous architects जो हैं वो दुनिया में वो कुछ sculptors हैं, कुछ एक Japanese architect हैं Tadao Ando, उनसे मैं काफ़ी इंस्पिरेशन लेता था अपने काम में, और वो बेसिकली कारपेंटर थे. तो उनका मिनिमलिस्ट स्टाइल था और मैंने भी आर्किटेक्चर के अंदर मिनिमलिस्ट स्टाइल को ही रखा. और साथ माई केस स्टडी वॉज एक्चुअली लाइट, यू नो व्हेन आई गेव माई कैप्चर लाइट. या सो व्हेन आई गेव माई थीसिस, उसके अंदर मेरा जो स्कोप ऑफ स्टडी था वो फिनोमेना ऑफ ट्रांसपेरेंसी था. Phenomena of transparency is basically when you capture surface out of spaces and spaces out of surfaces. और उसके अंदर जो स्टडी एस्पेक्ट था वो लाइट था. और इफ़ यू आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग द फोटोग्राफी, फोटो मीन्स लाइट एंड ग्राफी इज टू कैप्चर. सो दैट्स हाउ दे कनेक्टेड. एंड साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही थी. मेरा थीसिस के अंदर प्रोजेक्ट भी ऐसा था जिसके अंदर मैंने आर्किटेक्चर लाइट से स्पेसेस क्रिएट की थी. एक आर्टिस्ट कम्यून थी और आई हैड सम गुड टीचर्स टू वर्क विद जिन्होंने मेरा थीसिस में हेल्प किया था. So like are you doing something related to architect nowadays, or like have you started something new in your life abhi apart from photography stuff? Yes, we have actually अभी बिल्कुल एक नया वेंचर हमने स्टार्ट किया. आर्किटेक्चर इंटीरियर हमारा चल रहा है. माई वाइफ इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट. तो हम लोग एक आर्किटेक्चर फर्म चलाते हैं, आर्किटेक्चर इंटीरियर. So like you are taking everything side by side. That's perfectly fine. अब इंसान काम ही करेगा और क्या करेगा. So like what you have recently started? Recently we've started a clothing brand. Can I be the brand ambassador of it? Yeah, but it's for women. Like just by a smidge? Okay. Yeah, but you know, if we start the men's line, which we plan to, Yeah, please keep me. because it's an ethnic and eastern wear, yeah. So we'll definitely हम सोच रहे थे कि next year इसमें men's kurtas add करें. So if we do that, so why not? You won't be the sole brand ambassador. I know, that's perfectly. I can be one of the brand ambassadors. Okay. Like that's perfectly fine. तो मोहसिन जो एक बात थी वो ये कि जो मुझे तुम्हारे काम में बहुत मज़े की बात लगी थी, जो मैंने देखा था, what was his name? His name is also मोहसिन. वो चार्ली वाला जो सीन था. मोहसिन अब्बास. Yeah, he's an actor. He's an actor. काफ़ी अच्छा दोस्त भी है मेरा. Okay, we'll talk about that afterwards. तो उसकी जो फोटोग्राफी थी, like he was acting as a Charlie और उसके साथ like it was in old Lahore. तब मुझे पता चला कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर तुम्हारा वो है ना बायो दैट आई कैप्चर लाइट, व्हाट डज दैट मीन?
you actually captured light. मुझे लग ही नहीं रहा था कि like it was from this era. So like when you do your work, what you try to portray, like what is the message that you try to give out to the audience or to the people? देखो मैसेज वाले सारे शूट्स में मैसेज तो नहीं देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Yes. बेसिकली आई हैव दिस, मेरा एक रोमांस है लाइट के साथ. सो बेसिकली यू नो कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती हैं जो कि आप अपने लिए खींचते हो, और मेरा ये मानना है कि आई डोंट लाइक टू यू नो, मैं compete कर भी नहीं सकता यार, और करना भी नहीं चाहता फेलो फोटोग्राफर्स के साथ. मेरा एक अपना ट्रैक है, मैं उस पर चलता हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए. एक कमर्शियल साइड है विच अर्न्स मी माई ब्रेड एंड बटर एंड आई पे माई बिल्स एंड एवरीथिंग, और एक मेरी अपनी पर्सनल साइड है जिसको मैं फोटोग्राफी से करना चाहता हूँ. दैट इज़ प्योरली फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन. इट्स वो उसके अंदर लाइक्स और वो चीज़ें नहीं है. हाँ, ये चीज़ें फैंटिसाइज करती हैं बहुत. आई रियली लाइक यू नो जब लाइक्स आ जाते हैं, बढ़ जाता है, मुझे अच्छा लगता है. बट इवेंचुअली 1-2 घंटे बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. मतलब मेरी उसके वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करता. बट एग्जीक्यूटिंग यू नो व्हाट आई वांट. अब बहुत से ऐसे मेरे फैशन शूट्स हैं जिसमें पीपल हु वर्क विद मी दे नो कि मैं दिन के वक्त आर्टिफिशियल सनलाइट क्रिएट कर रहा होता हूँ, और मतलब वीडियोग्राफर्स जो हमारे साथ काम करते हैं उनको पता होता है. तो वो मेरे काफ़ी अच्छे वीडियोग्राफर्स दोस्त भी हैं, वो यही कहते हैं कि आप खुद तो अपनी लाइट शाम के टाइम भी बना लेते हैं, हमारे लिए मसला हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, थीमेटिक होती हैं. फॉर एग्जांपल आई इंडल्ज्ड, एक हमारी कैंपेन थी सेव वाटर के नाम से. अब ये 2 साल पहले हमने की थी. उसके अंदर हमने ये कहा था कि अ डे विल कम कि आप जितने मर्जी अमीर हों, आप उसके अंदर आप पानी नहीं खरीद सकेंगे, बिकॉज पानी वाटर इज़ अ स्कार्स रिसोर्स. और उसके अंदर हमने किया ये था कि वी पोर्ट्रेड वन फैशन मॉडल, अ फीमेल एज अ क्वीन, और उसको उसके साथ हमने उसने बहुत ज़्यादा जूल्स पहने, और बड़ा उसका एक गाउडी किस्म का ड्रेस था, अच्छी सी सेटिंग में वो तस्वीर थी, हाईली फोटोशॉप्ड एंड ऑल. और उसने ग्लास एक बड़ा महंगा सा ग्लास पकड़ा हुआ था, और उसके ग्लास के अंदर मिट्टी थी. तो मैंने एक मैगज़ीन को भेजा उन्हें, मैंने बोला कि दिस इज़ अ कैंपेन विच आई हैव डन एंड इट हैज़ अ मैसेज एंड इट हैज़ अ फैशन शॉट एज वेल, एंड उसका स्कोप भी थोड़ा इंटरनेशनल था बिकॉज आई पुट दैट ऑन Behance, एंड Behance पे उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मिला. तो मैगज़ीन की जो ज्यूरी थी उन्होंने कहा कि जो डिसाइड करती थी कि ये इंस्टाग्राम पे लगेगी हमारे कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार ये समझ ही नहीं आया. इस तरह मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है ये. शुरू में जब हुआ था तो थोड़ा सा मैं सोचता था यार इनको क्यों नहीं समझ आ रही. अब ऑलमोस्ट इट्स बीन लाइक 10 years नाउ आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी. पहले तो कुछ और तरीके से सोचते थे, अब तो इस तरह, अब तो वो स्टेज आ गई हुई है ज़िंदगी में कि जब आप थोड़े तहम्मुल मिजाजी से सोचते हो और कहते हो कि यार forget it and forget and forgive. Different school of thoughts, ना? तो Basically lack of knowledge. Lack of knowledge. Same goes for me as well. You know, अगर वो कोई marketing की ऐसी चीज़ बताएं. Economics समझाना शुरू करते हैं. Economics में तो I scored 97% in my O levels. Oh my God. Okay. I was initially an economics student. लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो मुझे marketing, जिस तरह marketing में I'm very weak, मुझे marketing समझाना शुरू कर दें और मुझे ना समझ आए तो कसूर तो मेरा है ना यार, कि मुझे तो वो अगला बंदा सही बात बता रहा है. इस वजह से आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई वेबसाइट, और मैं अपने काम पे फोकस करूँगा. और वेबसाइट इज रियली अट्रैक्टिव. मोहसिन, द स्टेज वेयर यू आर राइट नाउ, सो आई एक्चुअली वांट टू नो हाउ वाज द जर्नी, व्हाट वर द स्ट्रगल्स दैट यू हैड टू गो थ्रू. मुझे अच्छी तरह याद है. आई रिमेंबर, आई वोंट नेम. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ फोटोग्राफर, तो मुझे एक ब्रांड ने अप्रोच किया, और मैं तब यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा था, तो मुझे बड़ी ज़रूरत थी पैसों की, साथ काम भी करना था. तो एक ब्रांड ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी ये XYZ मॉडल है, इनको हम लेना चाह रहे हैं और आपके साथ में शूट करना है, तो आप बताएं क्या पैसे लेंगे. मैंने पैसे बताए थोड़े से. उसने ज़्यादा सारी बार्गेनिंग की, वो पैसे और थोड़े हो गए. मैंने कहा ठीक है यार, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मुझे तो ये अभी करना भी है, बड़ी चीज़ें सपोर्ट करनी है. आई सेड यस. इवेंचुअली लास्ट डे पे शूट कैंसिल करना पड़ गया मेरी तरफ, मुझे निकालना पड़ गया, बिकॉज दैट पर्टिकुलर मॉडल सेट मैं किसी के साथ काम नहीं करती. स्ट्रगल जो है ना वो कांस्टेंट है. इट इज. देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट. सेकेंडली मैं ऐसे नहीं सोचता कि एक पॉइंट आ गया तो बस. हाँ, मैंने 2-3 साल पहले थोड़ा सा ऐसे सोचा था, और लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये रुक गया है.
मैंने ये सोचा था कि मैं थोड़ा स्लो हो गया था. आई थॉट कि यार अभी थोड़ा ज़रा इजी ले लेते हैं. That's fine. Like, you know, to take a break. आहिस्ता-आहिस्ता. समटाइम्स यू नो, बट आई थिंक इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होना चाहिए कि उसको बेंचमार्क्स और टारगेट्स बनाने चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान देखता है और लोगों को देख के ये कहता है कि यार मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास ये क्यों नहीं है. लेकिन हम उस चीज़ में ये भूल जाते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं एंड हाउ वी स्टार्टेड एंड वेयर वर वी, और क्या हमारे पास ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीस ऑफ माइंड. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू नो समटाइम्स अब आई अर्न एंड आई स्पेंड दैट ऑन माई ट्रैवल. मैं कोई दिखाने वाली चीज़ें नहीं करता. मतलब फ़ोन मेरे पास भी नॉर्मल्स है, ऑल्दो आई कैन अफोर्ड एन आईफोन एवरी ईयर जो भी नया वगैरह आता है, लेकिन आई डोंट वांट टू. आई कैन स्पेंड दैट मनी ऑन समथिंग एल्स व्हिच गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, बिकॉज मुझे वो चीज़ें दिखानी नहीं है. और कभी कभी ऐसे होता है कि मैं अगर किसी की चीज़ देख रहा हूँ या कुछ तो मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगूँ, तो व्हाट आई डू इज आई स्विच ऑफ सोशल मीडिया फॉर दैट पर्टिकुलर वाइल, या मैं उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन से बाहर आ जाता हूँ एंड आई स्टार्ट वॉचिंग समथिंग एल्स या स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जहर है. तो इसके लिए अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी है. उस पर फोकस करना चाहिए. और वो जो थोड़ा है ना वो अच्छा है, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए. क्वांटिटी इज़ नॉट द की, क्वालिटी इज़ द की. And you know, like the things that you're sharing right now, I have observed that in your WhatsApp live as well. क्योंकि जिस इंडस्ट्री में इस वक्त मोहसिन खावर है, और that industry is very busy, but still you turn off your WhatsApp a lot of No, times. actually I'll tell you, I'll be honest here. Yeah, I was. If you want to add this to कर देना. Yeah, I have to. Okay. Just being sarcastic. Yeah. Okay. WhatsApp जो है ना मेरा basically I have two numbers. One is my work number and one is my personal number. So I have you the work probably number. have my number from Instagram. That is my work number. Yeah, I had the number directly from you. You gave me your work number. That's totally fine. But that's a work number. Okay. इस वजह से. दूसरा मेरा WhatsApp पे I am connected with my friends. We have WhatsApp groups and उधर बहुत लतीफ़े हम शेयर करते हैं. वो तो उसके बगैर तो जोक्स के बगैर तो ज़िंदगी में नहीं है ना गुजारा यार. But you don't look that funny and like the person who like, you know, like wants to have fun. You look a very serious What kind kind of of person. Every kind of fun. Everyone wants to have fun. लेकिन यार ऐसे ही है. When I get good friends with someone, तो I'm a funny guy as well. अच्छा, Mohsin, like in this industry or anywhere, आपको ना कभी-कभी ये होता है कि like, if you want to be a big name, you have to be associated with a big name. Is that true? For example, like that was quite obvious. Like if you want to be a big name, you have to be associated with like a big name. with big brands and all. Maybe big brands, or maybe like you must have a very heavy reference to pursue your career. Yeah, depend करता है कि which field are you talking about? Yeah. Because हाँ showbiz तो है ही ऐसी. Showbiz में तो शो ही मारनी है लोगों ने. लेकिन अगर कोई for example banking है या No, I'm talking about showbiz and अच्छा, photography. Big reference, for example, if you photograph big brands and if you work with big celebrities and all, so definitely it gives a boost to your career. लेकिन celebrities are very picky, by the way. वो हर किसी को photograph नहीं करने देते. Are they? Yeah, they are. I thought it's just about the money. No. They are very particular about their photographs, about their hair and makeup. वो brand को बताते हैं कि आप बताएं कौन से photographers हैं. अगर उनकी पसंद वाले हैं, पसंद से मुराद ये कि उनको ये नहीं है कि उनकी कोई पर्सनल फेवरेटिज्म Like होता है. they personally feel comfortable with. कंफर्टेबल भी होना होता है और दूसरा काम भी अच्छा like their हो. work. असल चीज़ काम होती है, बिकॉज ऑब्वियसली काम अच्छा होगा तो उनकी अपीयरेंस एंड फेस और सारा कुछ अच्छा They है. will promote it that way. प्रमोशन का तो पता नहीं होता, लेकिन वो ऑब्वियसली वो प्रमोशन दीज डेज इज एवरीथिंग इज पेड. जिस तरह फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच थोड़ी सी ख़राब हो गई हुई है ना. यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय फेसबुक पेज, बेसिकली मेरा फोटोग्राफी का मैंने ग्रुप बनाया हुआ था फेसबुक पे. तो फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि डू यू वांट टू कन्वर्ट योर ग्रुप इनटू अ पेज, बिकॉज दैट्स व्हेन द पेजेस वर स्टार्टेड एंड
ये आई थिंक 2013 की बात है प्रॉब्लली। तो तब मैंने किया था। ऑर्गेनिक रीच तो तब इतनी ज़बरदस्त थी, लेकिन अब तो एवरीथिंग इज़ यू हैव टू टेक एड्स एंड यू हैव टू प्रमोट। इसी तरह हमारी सेलिब्रिटीज़ भी, अगर आपने शाउट आउट भी लेना है, क्योंकि आप मतलब अगर आप फ़र्ज़ के तौर पे आप अगर मेरी उनके साथ किसी के साथ दोस्ती है तो ठीक है, मैं आपको ही फेवर दे देता हूँ तो वो भी मुझे फेवर देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हर किसी से वेरी करता है, हर इंसान से के साथ वेरी करता है। लेकिन फॉर ब्रांड्स इफ़ दे वांट के वो उनकी स्टोरी पे डालें, उसके अलहदा पैसे हैं, फीड के अलहदा पैसे हैं, शाउट आउट के अलहदा पैसे हैं, राइटली सो। इतनी मेहनत तो इसीलिए करते हैं ना कि अपने आप को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बेच सकें। Yeah, I'll do that for your brand. Okay, But that's thank you. the question that I ask each one of my guests. That question is, what is that thing that keeps you bright in the darkest of times? होप, अल्लाह। नमाज जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, डिसिप्लिन के लिए भी। और कभी भी किसी इंसान से नहीं मांगना चाहिए या उसकी तरफ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए, क्योंकि इंसान तो खुद अल्लाह का मोहताज है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव अ वेरी गुड सपोर्टिव वाइफ। शी इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। हम लोग इकट्ठे पढ़ते It's a थे। big thing. हाँ, और माई फैमिली में मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, वो बहुत मज़े का इंजॉय करते हैं। और माई पेरेंट्स वो भी बहुत सपोर्टिव रहे शुरू से। लेकिन आई थिंक जिसने मुझे टू बी ऑनेस्ट मजबूत रखा थ्रू माई थिक एंड थिन, Your faith and belief in Allah. my faith and believe in Allah. और my wife has a lot of a very strong role to play in this because उसने भी मुझे हमेशा कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं की, कभी भी किसी के बारे में भी नहीं। So, Mohsin, I have prepared some questions for you. I call that a rapid fire round, but you don't have to be very rapid. Okay. So, but you can think about it. I can be fiery. You can be fiery. You can be very fiery. So, favorite celebrity to work with? Yeah, that's a very tricky question. Yeah, you have to do that. Like I'm putting you in fire, and you just have to mention one. Oh. यार Okay, two. अच्छा, मैं जल्दी से बताता हूँ। वैसे तो आई लाइक पीपल हु आर कंफर्टेबल टू वर्क विद, Okay. जो मुझे मेरा फोटोग्राफिक फ्रीडम देते हैं। एंड आई वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स, Yeah. फ्रॉम शान टू मिकाल टू एहसन खान, Yeah. Mohsin I'm just Abbas. waiting for the names. इमाद इरफानी। तो ये सारे ही अच्छे हैं यार। मतलब हाउ कैन यू। So you are not going to name two. हाँ, or मैं one. I've decided to be very diplomatic in my life now. But still, वैसे मैं कहूँगा कि मैंने कैरेक्टर शूट्स जो किए हैं ना सबसे ज़्यादा, Yeah. वो मैंने मोहसिन अब्बास के साथ किए हुए हैं। So you would name Mohsin Abbas. फिर दूसरा मुझे मिकाल के साथ भी बहुत मज़ा आता है, बिकॉज वो बहुत विटी है और फनी है। Yeah, I've heard that. So who is your personal favorite photographer? सवाल बहुत अच्छा। यार मेरा ना सीन ये है कि मुझे Oh my God. मुझे फोटोग्राफर्स के से ज़्यादा आई लाइक फोटोग्राफ्स। Okay, the recent photograph that you like the most. यार एक there's a street photographer, एलन शेरर उसका नाम है। वो Okay. मैं उसके इंस्टाग्राम को फॉलो करता हूँ एंड आई रियली लाइक हिज, वो ब्लैक एंड वाइट करता है तो मुझे उसकी कॉम्पोजिशंस बहुत पसंद आती है। So the most beautiful city you ever visited? लाहौर, Okay. उससे खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है। The city. वैसे where- माई सेकेंड सिटी विच आई वुड ऑलवेज लाइक टू गो, और मैं वैसे ये हरकत 2 दफ़ा कर चुका हूँ, दैट इज़ बुदापेस्ट। Oh yes, visit Budapest and feel good. Guys, visit Budapest and feel good. So the city where you can live forever except Lahore. बुदापेस्ट। Okay. The movie that made you cry. मूवीज डोंट मेक मी क्राई। हाँ, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा कुछ आई एम अ बिग पैट्रियट, अगर कोई पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो बस दिल भर आता है थोड़ा. दिल, हाँ, पर You are a traveler, so what are your travel essentials? Name just 3. And just 3. वॉलेट, Okay. फ़ोन, Okay. कैमरा। Describe yourself in 3 words. Not more than 3 words.
I once asked this question to a person and he said WTF. And I was like, thank you. In 3 words, I am an honest person. Okay. I'm not ये वैसे नहीं कह रहा. Yes. मतलब मैं झूठ नहीं बोलता. Okay. कोशिश करता हूँ कि बोलूँ ही ना बिल्कुल भी. बोलूँ भी तो बता देता हूँ. One is honesty. और second foodie. Okay. Should we say calculative? नहीं. Not at all. We need a third word. क्योंकि मैं थर्ड वर्ड सोच नहीं पा रहा तो indecisive. Indecisive. I was going to say that. What do you look for in a friend? Honesty. Honesty. Okay. What is your favorite Hollywood? Like, who is your favorite Hollywood actress? यार बहुत है. Name one. Just one. Monica Bellucci is beautiful. Monica Bellucci is good. The next question is interesting. One day, if you wake up as Monica Bellucci, the first thing that you will do is. I'm going to. Yes. I'm going to tell the world that Mohsin curious. Khabar is the best photographer in the world, Oh my and God. I'm going to promote it from all my social media, Instagram, and then the magazines in Pakistan And will he's go my crazy official about photographer it. right now. Huh? He's my official photographer now. Yeah. और इधर मैगजीन से पागल हो जाएंगे ना. उन्होंने कहना ओह सर सीन ही आपका. Okay. बेशक मुझे काम ना आता हो, लेकिन मेरा सीन हो जाएगा. So name 2 actors in our industry who you think are unstoppable. Actors Actors as in like one male and one female. unstoppable as in like they're doing very They're good. doing very good. अच्छा. According to you. An actor. Let me think because Yeah. मैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाह रहा हूँ कि कौन अच्छी एक्टिंग करता है. यार असल में पता है क्या प्रॉब्लम आपके सवाल के अंदर ये है कि आपने Yes. कहा है कि हु आर अनस्टॉपेबल एंड गोइंग प्लेसेस, बट द पॉइंट इज़ कि आई हैव सीन लॉट ऑफ ब्रिलियंट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो कि एक्टिंग वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको वो फेम नहीं मिल रहा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जो उनको मिलना चाहिए. और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मली एक्टिंग आती Okay, है. just name 2 actors who you think are underrated, and they should be recognized more for the work that they are doing. यार आई थिंक आई शुडंट कमेंट ऑन एक्टिंग बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं फिगर आउट. Okay, name 2 actors from this industry who are your favorite. अच्छा. One actor and one actress. Your favorite, so you can name anyone because it's your favorite. एक्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है वैसे ही बता सकते हैं. Like when I ask this question, generally जो 2 नाम दिमाग में आ रहे हैं in any point of view, just name those 2. अच्छा वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हुमायूं सईद has accomplished a lot Yes. over the years. और आई थिंक And he has done a lot of different roles. हाँ फीमेल एक्ट्रेसेस में आई लाइक माहिरा खान, आई लाइक सजल अली. Yeah, now you're going to name all of them. नहीं आई हैवंट वर्क विद बोथ ऑफ देम, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि सजल अली की एक्टिंग मैंने देखी थी, अच्छी एक्टिंग है, और माहिरा खान की भी एक्टिंग अच्छी है. और Yes, I got my answer. You were not rapid. That's Okay. fine. but I was fiery. No, I wasn't fiery. So if you ever write a biography, autobiography, what would its name be? यार that can't be a rapid fire question. मैं इसके बारे में गालिब का शेर कहना चाहूँगा. And I would be really interested in listening to that. उसके अंदर से आप कोई भी लफ्ज़ निकाल के Okay. ऑटोबायोग्राफी. अगर मुझे समझ आया तो. नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का. Thank you so much for listening to me.